नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्य आपके साथ। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बीजेपी कार्यालय में आज पार्टी की ओर से ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। बीदर के विधायक रहीम खान के आरोपों का दिया गया जवाब। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा कदम, मामले को बड़ी बेंच भेजा गया। अल्लाहू अकबर या जय श्री राम को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कही यह बात। हमें कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, हिंदुओं के लिए हिजाब अनिवार्य करेगी कांग्रेस, कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार ने कही यह बात। हिजाब विवाद में कूदे सियासी दल, आप, कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। बीजेपी को खत्म करना होगा अपना हेट जिहाद, हमारे पास लव जिहाद जैसी चीजों की जगह नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर के बीजेपी कार्यालय में आज पार्टी की ओर से ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें राज्य कार्यकारिणी सदस्य कुशल पाटिल गादगी, रेवन्ना सिद्धप्पा जलादे, विजय कुमार पाटिल गादगी, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार चिदरी और दूसरे नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनों बीदर के विधायक रहीम खान ने बीजेपी पर यहां आरोप लगाया कि बीजेपी संपूर्ण तौर पर विफल हो गई है। बीजेपी के नेता बाहर निकलेंगे तो जनता उन्हें मारेगी। और रहीम खान ने यह भी कहा था कि महामारी के दौर में बीजेपी जीरो हो गई है। रहीम खान के इन आरोपों का जवाब देते हुए ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी राज्य और देश की भलाई के लिए क्या क्या काम किया गया है, यह सब जनता जानती है। इसके बारे में बीजेपी को रहीम खान से सीखने की जरूरत नहीं है। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ದಾರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ತಾಲಿಬಾನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಭಾರತ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ದೇಶ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಿದಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು। ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿವಾದವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ, ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು। ಆಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಕೂಡ, ನೀವೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ತೀರಿ? ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪದ ನೀವು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಾಲಿಬಾನಿ ನಾಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ನೀವು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸಿ। ಇವತ್ತು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ತಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ, ಜನಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲಸ ಇದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಮನೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮುಖಾಂತರ, ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ। ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತದೆ। ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೂ, ನೀವೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
दलित संगठन गड़ा वकोटी बीदर की ओर से बीदर की बरित शाही होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें राजकुमार मोल भारती, रमेश डाकोड़गी, अंबादास गायकवाड़ और सईद वहीद लखन के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले रायचूर के जज मल्लिकार्जुन गौड़ा के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर उस जज को गिरफ्तार करने और हुमनाबाद के तहसीलदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने पर विरोध जताते हुए तहसीलदार को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए यहां ऐलान किया गया कि 19 फरवरी को बेंगलुरु में इनके खिलाफ एक विरोध रैली निकाली जाएगी, जिसमें बीदर के अलावा पूरे कर्नाटक से लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर रमेश डाकोड़गी और वहीद लखन ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बड़े पैमाने पर अपमान किया है, उसका विरोध में पूरे कर्नाटक और पूरे भारत देश में संघर्ष शुरू हुआ है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो जज के ऊपर आज तक कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हो गए है और उसी प्रकरण को लेके जब हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में जब हुमनाबाद का जो घटना हुई है, वो घटना में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, हमारे दलित कार्यकर्ता, और जो वहाँ के तहसीलदार के ऊपर जो कानूनी एफआईआर हो गए हैं, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। और पूरे भारत देश के हर कोर्ट के हाल में जहाँ पर जज बैठ के जो जजमेंट लिखता है और प्रोटोकॉल के तहत जो राष्ट्रपिता गांधी जी के फोटो उसके बाजू कंटिन्यूअस कायम बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो रखने के लिए डिमांड को लेकर और उसको अरेस्ट करने के लिए और हुमनाबाद तहसीलदार को अरेस्ट करने के लिए चारों ये डिमांड्स को लेके जब 19 फरवरी 2022 बेंगलुरु में बहुत बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जा रहा है, रैली। इस रैली में कर्नाटक के कोने कोने से दलित संगठन के कार्यकर्ता, प्रोग्रेसिव संगठन के कार्यकर्ता, किसान संगठन के कार्यकर्ता, कार्मिक संगठन के कार्यकर्ता, हर एक संगठन के कार्यकर्ता लाखों लोगों में 19 तारीख को जमा होकर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में बीदर जिले के और से सभी संगठन के हमारे हजारों कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे और इस रैली को कामयाब करेंगे। दूसरा, मैं बीदर जिले के डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुप्रिटेंडेंट एसपी और है के डीवाईएसपी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं कि हर इंसान को कानून एक ही होना चाहिए। आम आदमी को ये कानून और ऑफिसर्स को ये कानून नहीं है, इसलिए आम आदमी को आप अरेस्ट करें। इसी तरह जो एफआईआर हुए है तहसीलदार, उसके ऊपर उसको भी अरेस्ट करना। ये नया डीसी और ये नए एसपी को मैं इस माध्यम की ओर से उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्द ये कार्रवाई करे और ये मूवमेंट को है ही खत्म करे, नहीं तो ये आगे बढ़ते ही जाएगा। कानूनी व्यवस्था आगे होके ये जाति और धर्म का संघर्ष ले रहे हैं, इसको भी खत्म करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करना। अब ऑलरेडी जो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में नहीं है, रिकॉर्ड में हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं है। ऑलरेडी हमारे डीएसएस के कार्यकर्ता जाके हॉस्पिटल में जो वीडियो करके जो फेसबुक लाइव हो गए उसका रिकॉर्ड है। इसलिए ये ज़्यादा गंभीर से पुलिस डिपार्टमेंट लेके इसको तुरंत से उसको अरेस्ट करना बोल के हमारे संगठन के ओर से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को हम ये बताए कर रहे हैं। जो आज कर्नाटक में जो हिजाब की जो ये चल रहे हैं, ये हिजाब ये भारत संविधान के ओर से जो सभी धर्म
उनके आचरण करने के लिए स्वतंत्रता दी है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदू हो या हिंदू कल्चर करने के लिए वो स्वतंत्र है, जो इस्लाम हो इस्लाम के कानून के तरफ से उनका धर्म का आचरण करना उसका स्वतंत्र है। तो ये ऐसे प्रकरणों को बहुत सूक्ष्म है ये, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ के आरएसएस के लोग इसको भटवा ये करके इसका राजनीति करना चाह रहे हैं। हम इसके खिलाफ है। और ये जो देश का जो डेमोक्रेसी का पिलर बनने का जो यहाँ का यूथ्स है, जो 19-20 साल के अंदर के बच्चों के दिमाग में जो ये अफीम भर रहे ये लोग धर्म का और जाति का, इसको छोड़ना चाहिए। ये सौहार्दता बनना चाहिए। कॉलेज स्कूलों में सभी बच्चे लोग भाईचारे से पढ़ने का व्यवस्था सरकार करना है। इसको इमीडिएट सरकार इसके ये कंट्रोल करके यहाँ का कानून सुव्यवस्था को और ये धर्म का जो संघर्ष कराने का पीछे जो हाथ है इसको पकड़ के जेल में डालने का जो आग्रह हम दलित संगठन के ओर से करते हैं। आज दलित संगठनों की जानिब से जो आज ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मेन मकसद ये है कि आज देश के अंदर हमारे जो घटनाएं घट रही हैं, जो बाबा साहब के फोटो का जो अपमान किया गया है, उसी के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसमें हर एक को अपना अपना हक, अपना अपना जो भी है रहने का जो है ना हक अदा करने की बात कानून के जरिए बताई है। फिर भी ये लोग जो है ना ऐसे हरकतें कर रहे हैं। देखिए आप लोग, जब रायचूर का एक जज इस तरीके की हरकत करता है कि बाबा साहब की फोटो हटाने तक जो है ना मैं पूजा नहीं करूंगा, झंडा वंदन नहीं करूंगा बोला, फिर बाज़ाब्ता फोटो हटा के बाजू रख दिया। ये एक वाकया होगा। उसी के संबंध में ये जब हुन्नाबाद तालुके में जब एक संगठन पार्टी की तरफ से, पार्टी की ओर से जो है ना बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यदर्शी जब मेमोरेंडम देने जाता है तो इतनी लापरवाही करते हैं। तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं कम फिरका परस्ती कर रहे हैं ज्यादा ही लोग, क्योंकि देखिए आप लोग, इनकी ड्यूटी क्या है, लोग जब आते हैं, लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं तो उसको लेना और उसके ऊपर अमल करना, उसको क्या कानूनन कार्रवाई करना है करने का है। उसके बजाय लोगों को जो है ना हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। और वो तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, जब अट्रॉसिटी केस बुक हुआ उसके ऊपर एफआईआर हुआ, बोल रहे हैं आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं होने की वजह क्या है? अगर अरेस्ट हुआ है, हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में रहने का रूल क्या है, कानून क्या बोल रहा है? अगर कोई मुजरिम जब हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है तो उसके साथ में कांस्टेबल रहता है कस्टडी लेके उसको। यहाँ तो ना कस्टडी है, ना कानून है, ना कुछ है। तो ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून की आंख में धूल झोंका जा रहा है। धूल कैसे झोंका जा रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको लोगों के जरिए। देखिए हम लोग परसों जो है ना हैदराबाद हॉस्पिटल गए थे, ब्रिम्स हॉस्पिटल में जाकर जब उसको रूम में देख रहे हैं तो मौजूद नहीं है। जब भाई आपको मार लगा है, आप एडमिट होना चाहिए, वहां पर रहना चाहिए, वहां पर उन्हें एडमिट है नहीं, जबकि वो नौटंकी कर रहा है। जबकि हमारे लोगों को दलित लीडर को, हमारे दलितों को जो है ना इतनी जबरदस्त तरीके से धोखाधड़ी हो रही है। देखिए आप लोग, वो जेल में तकलीफ में है और ये हॉस्पिटल में मजे उड़ा रहा है। क्या है ये? दिन में हॉस्पिटल में, रात में घर में है। क्या उसको सहायता देने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करे? अगर फौरी अगर उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, अगर उसको जो है ना पुलिस कस्टडी में नहीं लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर उन्हें रात में घर को जा रहा है, अगर कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार उसका? जबकि भाई हमारे पर भी केस वास हुआ है, दलित भाइयों पे हमारे। जब ऐसे चीजों को ऐसे रोकने के लिए कानून जो है ना लापरवाही बरत रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम। कानून को जो है ना वो एक क्रिमिनल की पॉलिसी चल रही है। तहसीलदार एक क्रिमिनल माइंड है ये, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें जेल जा चुका है, जेल के रूल मालूम है उसको, हॉस्पिटल में कैसे जाको सब ये होना मालूम है उसको। भाई उसको प्लानिंग पूरी है उसके पास, ऑलरेडी उन्हें क्रिमिनल रूल का अदा कर रहा है उन्हें। लिहाजा जो है ना उन्हें जज, ये हमारा तालुका ऑफिसर यानी कि तहसीलदार बनने के लायक नहीं था, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल की प्लानिंग बता दे रहा है। आज सारे लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं, तालुके के लोग देख रहे हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ देख रहा है, यहाँ तक कि हमारी पुलिस भी जो है ना उसके ऊपर नजर रखी हुई है, मगर उसको कुछ नहीं कर रही। कानून हमको इजाजत दे रहा है, हमारा मजहब इजाजत दे रहा है, हमारा इस्लाम इजाजत दे रहा है। हिजाब पहनकर जाना औरतों के लिए हिजाब बहुत जरूरी है हमारा इस्लामी तौर तरीके में। आज देखिए आप इस्लामी तौर तरीके को हमारे दूसरे बहने भी हमारे जो ना उसको अपना रहे हैं, क्योंकि नकाब लगाने से आदमी को सेफ्टी मिलती है, खुली नहीं रहती है औरत। उसके लिए हमारा इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता बगैर हिजाब के फिरना। हिजाब के ऊपर ही पाबंदी लगाई जा रही, हिजाब के ऊपर पाबंदी हटा देना चाहिए। आज 2-2:30 बजे जो है ना इसका कोर्ट में जजमेंट है। अगर वो कोर्ट का जजमेंट अगर
कानून अगर इंसानियत के हक में आता है तो हम आगे के लिए कोई प्रोटेस्ट का ये नहीं करेंगे। और जो लोग इसके खिलाफ कार्रवाई किए हैं, इसके लिए मूवमेंट किए हैं, उनके खिलाफ हम मूवमेंट करेंगे आगे। और कोर्ट का इंतजार है, कोर्ट का जजमेंट आने तक हम इस हिजाब के ताल्लुक से जो है ना नहीं बोलेंगे। अगर कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में अगर फिर भी वही जजमेंट आता है तो बराबर इसके लिए एहतजाज करेंगे। बड़े पैमाने पे बीदर जिले को बंद करते हुए एहतजाज करेंगे। मैं इतना कहते हुए आप लोगों का, तमाम प्रेस वालों का, पुलिस भाइयों का, एसबी वालों का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए साथ ही साथ हमारे दलित संगठनों के जो जिम्मेदारान हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमको हम अपने काम में, अपने भागीदारी में अपना हिस्सा लेने की हमको जो बोले हैं हम हिस्सा लिए हैं। इसका मैं तहे दिल से दलित संगठनों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं। आज बीदर के भीम आर्मी की ओर से राज्य में हिजाब को लेकर जो बवाल किया जा रहा है, उसके विरोध में भीम आर्मी के बीदर जिला अध्यक्ष अमरीश कुद्रे के नेतृत्व में भीम आर्मी के सदस्यों ने जिला अधिकारी पहुंचकर जिला अधिकारी को मेमोरेंडम दिया, जिसमें यह मांग की गई कि राज्य में हिजाब को लेकर हो रहे विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिजाब पहनना छात्राओं का फंडामेंटल राइट है। बीदर जिला AIMIM पार्टी के अध्यक्ष सैयद मंसूर अहमद कादरी ने भीम आर्मी का समर्थन किया। इस अवसर पर सैयद मंसूर अहमद कादरी, अमरीश कुद्रे के अलावा एक मुस्लिम छात्रा ने KP न्यूज से बात करते हुए हिजाब के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर कर्नाटक भीम आर्मी चीफ यशपाल बोरे, अखिलेश सागर और दूसरे उपस्थित थे। बीदर तालुका भीम आर्मी विद्यार्थी संगठन के उपाध्यक्ष निखिल अटकोरे ने भी हिजाब को लेकर चल रहे विवाद का खंडन किया। KP न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ, ಆ ಮನವಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಬಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದವರು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿದವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವ್ರಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಶಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪದ್ರಿ। ಅದ್ರ ವಿರೋಧ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂತ ಘಟನೆಕ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅವರು ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು। ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿನವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ಆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿನವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕುಂತ ಮೇಲೆ एक्शन तकलेबेको। ನನ್ನ ಹೆಸರು अमरीश कुद्रे, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। आज भीम आर्मी की जानिब से यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया गया। ये जो कर्नाटक में जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे के खिलाफ में यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया गया। इसमें ये डिमांड किया गया है कि कर्नाटक में जो मुस्लिम तालिबात को लेकर, बुरखे को और हिजाब को लेकर जो कर रहे हैं, वो इनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। यकीनी तौर पर यह केस कर्नाटका हाईकोर्ट में चल रहा है और आज दोपहर में उसका फैसला आने वाला है। और हमको उम्मीद है जिस तरह केरला हाईकोर्ट और जिस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस विषय में हमारे समर्थन में फैसला दिया है, उसी तरह कर्नाटका हाईकोर्ट का भी फैसला हमारे समर्थन में आएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ ये भगवदारी लोगों से और मनोवादी लोगों से कि उन्होंने जो अपने आप को जो कानून से बड़ा समझकर अपने से जो है ना आकर विद्यार्थियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इनको जो है ना इनके फंडामेंटल राइट से रोक रहे हैं, उनको जो है ना फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ केस किया जाए। बल्कि उनके खिलाफ जो आदमी तिरंगे को जो है ना निकाल कर वहाँ पर जो है भगवा झंडा लगाया स्कूल में, उस बच्चे के ऊपर तो सेडिशन चार्जेस होना चाहिए। और जो है ना बाकी जो लोग हैं, एक अकेली लड़की को देखकर भेड़ियों की तरह उनके ऊपर जो टूट पड़े, इन सब के ऊपर UAPA लगाकर उनकी तहकीकात होना और उनको गिरफ्तार करके उनको सजा देना। नहीं तो भीम आर्मी और बीदर के सारे लोग इसके खिलाफ में जो है ना खड़ा होंगे। सैयद मंसूर अहमद कादरी, मैं MIM प्रेसिडेंट हूँ, भीम आर्मी का समर्थक। और हम भी उनके साथ हैं। MIM दोनों हमारी हेल्प कर रहे हैं। हिजाब हमारी शान है, हमेशा से भी आज भी हमारी शान है। कोई हमें हमारा हिजाब, हमारा हक हमसे अलग नहीं कर सकता। और क्यों हमसे अलग करे भला? हम तो हमारी इज्जत के साथ रह रहे हैं ना, और आगे चल के भी हम ये इसी के साथ रहेंगे। ये हमारा इस्लामी हक है, कोई हमारा हक हमसे छीन नहीं सकता। और भीम आर्मी हमारे साथ है, अल्लाह मियाँ उनकी और आगे तक मदद करें, हमारे साथ हमारे खड़े हैं। क्योंकि आजकल औरतों के बारे में बहुत कुछ सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, और जो बोल रहे हैं वो गलत है।
हमारा हक है, ये हमारा हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम बिल्कुल ठहरेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा से भी। हम वो लड़की के साथ है जो आखिरी तक लड़ेगी, हम उसके हर साथ हैं। औरत के दिल में देश पैदा होना, या हक के वास्ते, हिजाब के वास्ते लड़ने के लिए आखिर तक हम साथ रहेंगे वो लड़की के, जो हमारे हम उसके साथ हैं। कोई लड़की डरने की जरूरत नहीं है, हम आखिर तक साथ हैं उन लोगों के। हमारे हक में आएगा, अल्लाह मियाँ के हमारे साथ है, हमारे हक में आए या ना आए, फिर भी हमारा हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या करेंगे, आज जो कर रहे हैं आगे तक लड़ेंगे हम लोग, जब तक हमारा हक हमें मिल नहीं जाता हम आगे तक लड़ेंगे। शहीद होंगे इसमें, शहीद होंगे, हम शहीद होने के लिए भी तैयार है, मगर हमारा हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हक लाना पड़ेगा। आज ये बोलती, कल दूसरा बोल। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामले में सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज बड़ा कदम उठाया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। स्कूल कॉलेज परिसरों में हिजाब विवाद को लेकर मामले की सुनवाई अब तक कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ कर रही थी। बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इस विचार के साथ संदर्भित किया गया कि मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा ही की जानी चाहिए। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि मंड्या में हुई घटना को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, जहां एक बुर्का पहने कॉलेज की लड़की जब भगवा शॉल में पुरुषों के एक समूह द्वारा अल्लाहू अकबर के साथ जवाब दिया गया था को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक में मैसूर जिला प्रशासन ने सोमवार को देर रात के ऑपरेशन में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल सेंटर के निर्माण के लिए जगह बनाने के लिए 140 साल पुरानी न्यू टाइप मॉडल स्कूल को ध्वस्त कर दिया। कन्नड़ माध्यम का सरकारी स्कूल 1880 के दशक में मैसूरू शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाया गया था। यह विध्वंस कन्नड़ कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं और दलित कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच हुआ है, जबकि रामकृष्ण आश्रम के प्रतिनिधि और समर्थक परिसर में स्मारक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 250 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और स्कूल को ध्वस्त करने के लिए 4 अर्थ मूवर्स लाए गए थे। जहां सभी का ध्यान हिजाब पहनने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के बुधवार के फैसले पर है। कर्नाटक भाजपा के बिजली, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा, हमें हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, अगर यह सत्ता में आती है तो कांग्रेस के नेता हिंदुओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर देंगे। कांग्रेस को सांप्रदायिक मानसिकता से बाहर आना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनसे विभाजनकारी ताकतों के पक्ष में रही है। विभाजन के दौरान भी कांग्रेस उन ताकतों के साथ थी जो देश को बांटना चाहती थी। वर्तमान स्थिति में भी पार्टी विभाजनकारी एजेंडे का समर्थन कर रही है। सुनील कुमार ने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने टीपू जयंती मनानी शुरू कर दी, जिसके कारण हिंदू नेताओं की हत्या हुई। उन्होंने कहा, सिद्धरामैया कहते हैं कि वह तिलक लगाने के खिलाफ है, वह धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बढ़ते विवाद को देखते हुए जहां एक तरफ सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, तो वहीं मामला हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में पहुंच गया है। अब बुधवार को शिक्षण संस्थानों के नजदीक सभी तरह के जमावड़ों और प्रदर्शनों पर 2 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसकी निंदा की तो वहीं बीजेपी ने इसे हिंदुस्तान में तालिबानी सोच को विकसित करने का षड्यंत्र करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। यह सबसे बुरी चीजों में से एक है। कानून व्यवस्था विफल हो गई है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर डरी हुई और चिंतित है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिछले 5 दिनों से मामला चल रहा है। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हिजाब विवाद पर कहा कि जिस तरह से एक लड़की को कुछ लोगों ने कैमरे पर घेरा और नारेबाजी की, वह बेहद निंदनीय है। भगवा हिंदुओं के लिए एक होली कलर है जो सिखाता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो लोग लड़की का घेराव कर रहे थे वह गुंडे थे। धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को इस विवाद से दूर रहना चाहिए। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने इसे हिंदुस्तान में तालिबानी सोच को विकसित करने का षड्यंत्र करार दिया। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि हिजाब विवाद हिंदुस्तान में तालिबानी सोच को विकसित करने का एक षड्यंत्र है और विद्या के केंद्रों को तबाह करने की एक साजिश है। आप हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में क्यों आते हैं? स्कूल का ड्रेस कोड होता है, उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार ने कहा कि हर देश का अपना कानून है, उस कानून के मुताबिक सभी को रहना चाहिए। हर विद्यालय के अपने ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड के मुताबिक चीजें होनी चाहिए और विवाद न करके राष्ट्रहित और देश हित में बच्चों को सिखाना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इंसानियत और इस्लाम में हमेशा संघर्ष रहा है, लेकिन भारत जैसा देश चाहता है कि आप जिस संस्था और संस्थान में रह रहे हैं उसके कायदे कानून के हिसाब से रहना चाहिए। जो जहां का कायदा कानून है उसके हिसाब से ही रहना चाहिए, इसी से देश महान बनता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला किया है और दिल्ली जल बोर्ड के अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल जल्द ही इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का प्रमाण पत्र देंगे। बता दें कि दिल्ली में जल बोर्ड के ये कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे और अपनी नौकरी नियमित करने की मांग भी उठा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 7 साल में काफी काम किए हैं, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है और विदेश में भी हो रही है। इतनी ज्यादा संख्या में अस्थायी कर्मचारियों को पहली बार पक्का किया जा रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं और वहां धार्मिक मामलों को नहीं पहुंचाना चाहिए। हर स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप स्कूल के बाहर जो चाहे पहन सकते हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में लव जिहाद पर 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माने का वादा था। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में लव जिहाद का जिक्र न होने पर जब सलमान खुर्शीद ने मीडिया कर्मियों से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे घोषणा पत्र में लव जिहाद जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना हेट जिहाद खत्म करना होगा। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने घोषणा पत्र जारी होने के बाद कहा, हमारा घोषणा पत्र महिला, युवा और किसान आधारित है। हमारा पूरा प्रचार धर्म और जाति से ऊपर विकास के मुद्दे पर है। पद्मिनी कोल्हापुरे इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से एक शानदार फिल्म की हैं। उसमें से एक शामिल है प्रेम रोग। इस फिल्म के डायलॉग के साथ ही फिल्म के गाने और स्टार्स की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। पद्मिनी कोल्हापुरे और ऋषि कपूर की यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आज भी लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरे की इस फिल्म में की गई एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। पद्मिनी की फिल्म प्रेम रोग 1982 में रिलीज हुई थी और इतने सालों में एक्ट्रेस का लुक पूरा का पूरा बदल गया है। बता दें कि अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे आज भी उतनी ही फिट नजर आती हैं। उनके ग्लैमरस लुक्स की फैंस तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो की एक रील शेयर की थी, जिसके शेयर करने के बाद फैंस भी बोले, आप बिल्कुल नहीं बदली। वहीं दूसरे ने कहा, क्या बात है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बीजेपी कार्यालय में आज पार्टी की ओर से ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। बीदर के विधायक रहीम खान के आरोपों का दिया गया जवाब। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा कदम, मामले को बड़ी बेंच भेजा गया। अल्लाहू अकबर या जय श्री राम को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कही यह बात। हमें कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, हिंदुओं के लिए हिजाब अनिवार्य करेगी कांग्रेस, कर्नाटक के मंत्री सुनील कुमार ने कही यह बात। हिजाब विवाद में कूदे सियासी दल, आप, कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। बीजेपी को खत्म करना होगा अपना हेट जिहाद, हमारे पास लव जिहाद जैसी चीजों की जगह नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कही यह बात।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।